सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट ही यही शनि राहु केतु। ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ? ਇਹ ਮਿਥ ਆ ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਗਲਿਕ ਪਾਵਰਸ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂਦਾ। तो अब सचिन तेंदुलकर की कुंडली में कालसर्प दोष है, वो इतना राइज कर गए। लता मंगेशकर की कुंडली में ये वाला दोष है, कालसर्प दोष, वो भी राइज कर गए। तो कहाँ जरूरत है, जाओ ना उधर। रिलीफ तो असली रिलीफ तो वही है। ਬਿਲਕੁਲ। और कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो कई बहाने चीज़ों को या ज़मीन में दबाने, ਬਿਲकुल कहाँ रिलीफ मिलेगा। ये तो हमारा साइकोलॉजिकल है कि हमने ये कर लिया तो डेट हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। पिछले जन्म का भी बता सकते हैं, पूर्व जन्म का भी, और आने वाले टाइम का भी, और प्रेजेंट का। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों पता लग सकता है। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी मून बेस्ड है ओके। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन बेस्ड है। सन के अकॉर्डिंग वो प्रिडिक्ट करते हैं, हम मून के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते हैं। ये मार्स का साल है तो इस साल में एनर्जीज का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, बहुत इंक्रीज्ड है। तो चीज़ें जो है वो बहुत ख़राब हो सकती हैं हर तरीके से, चाहे वो मौसम की बात करो, चाहे तुम वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स की बात करो। कि हम कहते हैं बृहस्पति या जुपिटर जिसको कहते हैं बहुत अच्छा है। कईयों के लिए बृहस्पति बड़ा प्रॉब्लम कर देता है, कईयों के लिए शनि बहुत अच्छा कर देता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰਭ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਗੈਸਟ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾ ਯੋਨਰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਲਸ ਨੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਬੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਏਂਠ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਚਾਰਿਆ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਇਹ ਨੋਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪਰਟ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪਾਇਆ ਵੋ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਦਵਾਇਆ ਵੋ, ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। नमस्कार। ਸਰ, ਮੈਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। आप एस्ट्रोलॉजी को क्यों ना माने, क्यों नहीं मानते आप मुझे इसका आंसर करिए पहले। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਟ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਨਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕਦੇ ਬਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਲੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਰਥ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਕੋਈ ਬਣਾਵੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾਂ ਉਹਨੂੰ। जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ पहले। आप गुरु पूर्व मनाते हैं? ਜੀ ਬਿਲकुल। हर साल सेम डेट पे आता है? ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ। ठीक है। हमारे यहाँ कहा जाता है कार्तिक के महीने की पूर्णमासी। ठीक है, तो आपकी डेट फिक्स रहती है क्या बिल्कुल। हर साल? हर साल उसमें डेट फिक्स नहीं रहती, लेकिन वो देसी नहीं महीने क्यों नहीं रहती? दिन चेंज होते हैं, डेट भी चेंज होती डेट भी चेंज होती है। है, तो ये क्यों चेंज होती है? आप बताओ। मैं ये ज्योतिष का ही पार्ट है। ओके। डेट फिक्स नहीं होती,
हर बार हर फेस्टिवल की, चाहे दिवाली ले लीजिए, चाहे गुरुपुरब ले लीजिए, चाहे होली ले लीजिए, क्योंकि हर महीने हर साल हमारा कैलेंडर चेंज होता है। जो कि हम हिंदू के वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कहें तो पंचांग बनता है। 5 अंग होते हैं जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन पांचों को मिला के एक पंचांग बनता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम कैलेंडर प्रिपेयर करते हैं। हमारे वैदिक ज्योतिष में इतना हम आगे 500 साल तक आगे कैलेंडर आज के डेट में प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि 10 साल बाद दिवाली कब आएगी या 10 साल बाद गुरुपुरब कब आएगी। ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, इसलिए आपको ज्योतिष पे बिलीव करना चाहिए। ओके। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी बतानी हो एक लेमैन के लिए, तो वो क्या एस्ट्रोलॉजी होती है? मतलब एस्ट्रोलॉजी में क्या चीज़ें होती हैं? कैसे वो काम करती है? बस थोड़ा-सा अगर आप हमें बता दो तो। ज्योतिष में एस्ट्रोलॉजी इसलिए हम पहले कुंडली बनाते हैं। कुंडली के अंदर हमें जगह का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लिया जाता है, देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम कुंडली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कुंडली में होता क्या है? कौन-कौन से सारे ग्रह होते हैं, या मतलब कुछ मैंने सुना है कुछ घर वगैरह होते हैं? इसमें 12 हाउसेज होते हैं, 12 घर होते हैं, इसमें 9 प्लैनेट्स होते हैं। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स को हम मानते हैं, हम नेपच्यून यूरेनस को नहीं लेते हैं। ठीक है, और इसके आधार पे ही कुंडली बनती है और कुंडली से ही हम आगे किसी के जीवन के बारे में बताते हैं। सिर्फ आगे के जीवन के बारे में बता सकते हैं, या फिर कुछ भी? पिछले जन्म का भी बता सकते हैं, पूर्व जन्म का भी, और आने वाले टाइम का भी, और प्रेजेंट का भी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों पता लग सकता है, बट उस पर वो डिपेंड करता है हमारी नॉलेज के ऊपर, हमारी कैसी स्टडीज़ है, हमने किस तरह से उसको प्रिपेयर किया है, उसके आधार पर बता सकते हैं। परफेक्ट। सर मैं थोड़ा ना प्लैनेट्स बारे जानना चाहनी ਹਾਂ। ਰਾਹੂ, ਕੇਤੂ, ਸ਼ਨੀ, ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्लेनेट ही यही है, शनि, राहु, केतु। शनि हमारी लाइफ में या हमारी कुंडली में नहीं होता, कर्म कारक ग्रह है शनि। हम कोई भी काम कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, जैसे आपस में हम बात कर रहे हैं, इवन हम सांस भी ले रहे हैं, वो भी कर्म ही कर रहे हैं। तो इसके बिना तो कुछ हो सकता ही नहीं। शनि हमारी लाइफ में हर जगह कनेक्टेड है, शनि कर्म कारक है, और शनि का ही वो है, राहु को कहा जाता है शनि की तरह ही काम करता है, केतु मंगल की तरह काम करता है। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਨੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਰਾਬ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ਨੀ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? हमें अपने कर्मों को ठीक करना है, ਓਕੇ। हम अपने कर्मों को ठीक रखें, ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें। हम्म। शनि खराब नहीं है हमारा, शनि बहुत अच्छा है, शनि राइज भी कराता है। अब देखो ना, आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको राइज कराएगा, आपके कर्म बेकार है तो आपको डाउन कर देगा। ਔਰ ਕੇਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ, ਕੇਤੂ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? केतु है, हमें अध्यात्म से भी जोड़ता है। एक एंगल होता है कि वो अच्छा भी है, वो डिपेंड करता है हर किसी की कुंडली पे, ठीक है। चार्ट पे डिपेंड करता है कि केतु किस तरह का फल दे रहा है, कैसा है। कहीं आपको अध्यात्म से कनेक्ट कर देता है, कहीं आपको बिल्कुल नेगेटिव बना देता है, गलत जगहों पे गलत डायरेक्शन पे ले जाता है। ਇਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਤੂ ਜਾਂ ਫਿਰ House में, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ राशि ਨੇ। में उसके राशि जो लॉर्ड है उस पर डिपेंड करता है कि वो केतु कैसा या राहु कैसा है। इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के लॉर्ड की तरह फल देते हैं। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੇਤੂ ਬਹੁਤ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ये डिपेंड करता है, अलग चार्ट चार्ट पे डिपेंड करता है सब। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਭਰਮ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਆ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋਰ ਹੋਣ? नहीं, कोई ग्रह अच्छा नहीं, कोई ग्रह बुरा नहीं है। हम किसी को हम कहते हैं बृहस्पति या जुपिटर जिसको कहते हैं बहुत अच्छा है, कईयों के लिए बृहस्पति बड़ा प्रॉब्लम कर देता है, कईयों के लिए शनि बहुत अच्छा कर देता है। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕਰੇ? बृहस्पति की कुंडली में प्लेसमेंट किधर बैठा है, किस अवस्था में है, जैसे नीच का हो गया, अस्त हो गया, या फिर गलत घरों में बैठ गया, गलत हाउसेस में बैठ गया, उसके आधार पे उसका फल मिलता है। ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾम्पल थोड़ा सा दसना चाहो तो? जैसे बृहस्पति नीच का है,
अब नीच का बृहस्पति बैठ जाए तो हमें अध्यात्म में ज़्यादा रुचि नहीं रहेगी, अध्यात्म से हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, या फिर हमें मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंसेस आती हैं ओके, अगर बृहस्पति खराब रहता है कुंडली में। तो ये डिपेंड करेगा कुंडली के कुंडली के ऊपर। ऊपर। और भी ग्रह इसमें उनका रोल होता है, जब आपस में कनेक्ट होते हैं तब इसका रिजल्ट। ठीक है, अकेला हम बृहस्पति को बुरा नहीं कह सकते। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? शनि जब पॉजिटिव है, देखिए शनि की आपने सुना होगा 7.5 ਹਾਂਜੀ, ढैया आती है, लोग डरते हैं। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। बेसिकली क्या होता है कि हमारे कर्म है, जब उसकी फेज या दशा आती है तो उस दशा में वो हमारे कर्मों का फल देने आते हैं। तो उसके आधार पर अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, अगर बुरे हैं तो बुरे फल मिलेंगे। लोग कहते हैं हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है? कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मज भी हैं, उसका फल मिलता है। हमें ये ह्यूमन बर्थ मिला है, वो हमें अपने कर्म, पूर्व जन्म के कर्मों को ही भोगना है। तो अब शनि जैसे जैसे फेज में आएगा, दशाओं में, अंतर दशाओं में, तो उस हिसाब से अपना फल करेगा। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੈਟ आप अपने कर्म भोग रहे हैं, आपको अपने कर्मों का फल मिल, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ अच्छा। वो हमें आता है तो हमें ये सिखाता है कि हमें अच्छे कर्म करने, लॉयल रहना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी का हक नहीं मारना, ये हमें सिखाता है। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ 7.5 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 7.5 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਿਕਸਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਲ 2 साल भी हो सकता, ਜਾਂ ਫਿਰ नहीं, फिक्स्ड है, ये फिक्स, ओके ये हर 30 साल में एक बार आता है। ओके, मतलब जिन्ने भी लोग ने, चाहे किसी ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ सारा कुछ रिपीट होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हर 30 साल में ये वाला फेज आता ही है। ਓਕੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਹੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ? अगर प्लैनेट्स कौन से अच्छे हैं, प्लैनेट तो सारे ही अच्छे होते हैं। अगर आप राहु में भी राइज करते हो, शनि में भी राइज करते हो, बृहस्पति में भी राइज करते हो, चंद्रमा में भी राइज करते इट्स ऑल अबाउट दैट प्लेसमेंट। हो, प्लेसमेंट और किस तरह से उनका जो है कुंडली में और ग्रहों से संबंध, रिलेशन बन रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। सपोज कुंडली में बहुत ग्रह एक अच्छा है और बैड इफेक्ट्स हैं उसके ऊपर, बुरे ग्रह देख रहे हैं, बुरे इन्फ्लुएंस में, तो उसके रिजल्ट में कमी आए। ओके, हमें दिख तो रहा है कि भैया हमने देख लिया हमारा बृहस्पति उच्च का है, लेकिन 2-2 3-3 प्लैनेट उसको देख लें या उससे कनेक्शन बना लें, रिलेशन बना लें, तो उसके रिजल्ट में कमी आ जाए। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨੇ, ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਂਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ, नहीं, ऐसा है, एग्रेसिव भी है, हर किसी की अपनी ਪਰ ਉਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, प्लेसमेंट में। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਓਕੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਤੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖੋ, ਮੇਰਾ ਬਰਥ ਇਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੋ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70 to 80 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਵੈਰੀ ਐਕਿਊਰੇਟ ਆਨਸਰਸ ਔਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਰਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਸਟੱਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਚੈਟ ਜੀਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ। देखिए चैट जीपीटी किसने बनाया है? ह्यूमन। तो सारी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाली, हम नहीं डाली है। हम ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना वास्ट वो है, इसमें हम सारी चीज़ें एक बार में डाल सकते ही नहीं है। काफ़ी जनरलाइज प्रेडिक्शंस होती हैं इसमें जो डाली जाती हैं, किसी के साथ मैच हो रही है, किसी के साथ मैच नहीं हो रही। आप देखते होंगे राशिफल भी आता है, न्यूज़पेपर में आता है, फोरकास्ट आता है, जो वो जनरलाइज होता है, काफ़ी किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होता है। अब किसी का प्लेसमेंट कैसी है कुंडली में, किसी की प्लेसमेंट कैसी है, अगर सबका कॉमन होने लग गया तो सबका तो अच्छा ही होगा, बुरा क्यों हो रहा है फिर? ਵੈਰੀ ਟਰੂ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਮਾਨੀ ਦੇ ਘਰੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ आप देखिए ना, एक पुअर फैमिली में बच्चा पैदा हो रहा है तो उसकी अपब्रिंगिंग कैसी मिल रही है उसको। एक रिच के घर में बच्चा पैदा हो रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग में डिफरेंस होगा, फैसिलिटीज़ में डिफरेंस होगा, और कहीं ना कहीं कर्मस तो है ही, कर्म भी है पूर्व जन्म के, उसके उस पर आधार करता है, उस पर आधारित हो। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਔਰ ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰਨਗੇ, नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਟੈਰੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਂਡ ਆ, ਟੈਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰ 3rd 4th ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਊਮਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੇਰੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। आपके केस में है और वो केस में नहीं है, ओके आप वेरीफाई कीजिए ना उन लोगों से, सेम इन्हीं नंबर्स का उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा ओके, तो न्यूमरोलॉजी किसी के लिए अच्छी हो सकती है और किसी के लिए अच्छी नहीं। है। जी जी, सबका एक जैसे प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, हम्म, सबका एक जैसा नहीं हो सकता, सेम हो सकता ही नहीं है। पर ऐसे कैसे है कि मतलब मेरे लिए अच्छा है और उनके लिए बुरा है तो न्यूमरोलॉजी नहीं, बुरा नहीं होता है, या तो आपका काम कर रहा है, अगर आपके फेवर में बात हो रही है, आपके अकॉर्डिंग आपके मन की बात हो रही है तो आप कह रहे हैं अच्छा है, अगर आपके मन के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं हो रही तो आप कहेंगे बुरा है, एग्जैक्टली। यही कहेंगे ना। डिफरेंस है दोनों में, एस्ट्रोलॉजी में और न्यूमरोलॉजी में। ये भी इसी का ही पार्ट है, ज्योतिष का ही पार्ट है, इसको अंक शास्त्र कहा जाता है, इसी से ही निकला है, ज्योतिष से ही निकला है ये। आजकल वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी ज़्यादा चलता है, ट्रेंड में है बहुत, जो कि शॉर्ट टर्म कोर्सेज लोग कर लेते हैं, उसको ही करना शुरू कर देते हैं। अब इतना मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। और जो हमारा एस्ट्रोलॉजी एंड देन वी आर हैविंग अ टैरो कार्ड्स आल्सो, है ना। टैरो कार्ड्स का फिर अगर हम इसके साथ बात करें न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी के साथ, तो हाउ टैरो कार्ड ऑथेंटिक बोल लें या फिर रिलायबल बोल लें, वो कैसे? टैरो आपका प्रेजेंट को बताता है, जितना मेरे को नॉलेज है, टैरो आपके प्रेजेंट को बताता है, फ्यूचर को नहीं बता सकता, पास्ट को नहीं बता सकता। आपने एक क्वेश्चन पुट ऑन किया, उसको इमीडिएट आपको आंसर कर दिया जाएगा। अब ये भी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का पार्ट। Okay, so tarot is not a part of Indian astrology, Vedic। Okay, ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਰੋ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ एंटिटीज कह लो, कुछ भी हो सकता है ना। वो आपके एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, ऑरा को पॉजिटिव करते हैं, इस तरह का उनका तरीका होता है आपको गाइड करने। ਇੰਡੀਅਨ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਟੈਰੋ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ डिफरेंसेस ਆ? हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी मून बेस्ड है, ओके, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन बेस्ड है। सन के अकॉर्डिंग वो प्रेडिक्ट करते हैं, हम मून के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करते हैं। हम सन को आत्मा का रूप कहते हैं और मून को मन का रूप कहते हैं, तो वो आत्मा को सेंटर पॉइंट बना के उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करते हैं, हम मून को मन को सेंटर बना के उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट करते हैं। दोनों ही ठीक है, दोनों ही ठीक है, सन से भी पॉसिबल है और मून से भी पॉसिबल है, लेकिन उनका थोड़ा तरीका अलग है करने प्रेडिक्शन करने का। बट जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ कह सकते हैं। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੈਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਮਾਂਗਲਿਕ ਆ, ਮਾਂਗਲਿਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮਾਂਗਲਿਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟੀਕ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿਥ ਆ ਜਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਗਲਿਕ ਪਾਵਰਸ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਂਦਾ? मांगलिक दोष बनता कैसे है? मंगल से बनता है जी। मंगल एक एनर्जी है,
तो एनर्जी बेसिकली एनर्जी दो कपल्स के बीच में एनर्जी मैच करते बैलेंस करते हैं। अगर वो बैलेंस होती है, अब सपोज कीजिए एक में एक बिल्कुल सुस्त है और एक बहुत एक्टिव है, एक्टिव और सुस्त आदमी इकट्ठे साथ में रह सकते, दोनों के क्लैशेस होंगे, बहुत है। मैच नहीं होंगे। तो बेसिकली मांगलिक का मिलाने का पर्पस यही होता है, और मांगलिक दोष से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये केस पर्सन टू पर्सन, कुंडली टू कुंडली डिपेंड करता है कि अब बताइए अगर किसी ने मरना है, अगर हमने नॉन मांगलिक शादी करते हैं लोग मर जाते हैं, कहते हैं ऐसे। तो सबकी एक एज फिक्स है, भगवान ने पहले से फिक्स कर रखी हुई है, जो है ना हमसे शादी कर लेंगे तो मर जाएंगे, सबकी एज तो पहले से डिसाइडेड है। अब किसी ने मरना है उस टाइम पे और वो दोष आ गया तो उसने इसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा दिया, ऐसा नहीं है। तो जो पूजा वगैरह कराते हैं, पीपल वगैरह से शादी कराते हैं और किसी और पेड़ से कराते हैं, ये कुछ ऐसा? पहले जमाने में चलता था, आजकल इसका कोई रेलेवेंस श्योर कि आजकल नहीं होता? नहीं, आजकल इसका कोई रेलेवेंस नहीं। इतनी स्टडी हो चुकी है एस्ट्रोलॉजी पे, तो इसका आपको इतना रेलेवेंस नहीं है। जैसे बाकी टॉपिक्स के ऊपर बाकी जितने भी हमारी मतलब एजुकेशन की बात करें उन पे स्टडी और रिसर्च होती है, ऐसे एस्ट्रोलॉजी पे चलती रहती है रिसर्च? रिसर्च आज भी हो रही है, आगे भी होती है, कितने टाइम से हो रही है, ये आज से थोड़ी ना हो रहा है। ये डिपेंड करता है देश काल परिस्थिति पे। पहले ज़माना कुछ और था, आजकल ज़माना कुछ और है। डे बाय डे इसमें चेंजेस आते जा रहे हैं, इसके प्रेडिक्शन करने का तरीका बदलता जा रहा है। प्रिंसिपल्स तो वही हैं सारे, बेसिक सारा वही है, लेकिन उसको कहने का तरीका, समझने का तरीका बदलता जा रहा है। सर एक और चीज़ है, कहते हैं कि शादी से पहले ना कुंडली को मिलाना चाहिए। चलो जो तो हिंदू रिलीजन वाले लोग हैं जो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं वो तो कुंडली मिलाते हैं और बोल देते हैं चलो ठीक है इतने गुण मिले और ये सब कुछ है तो लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। कुछ रिलीजन्स में कुंडली बनती नहीं बिकॉज उन लोगों की कुंडली का कोई सीन होता ही नहीं है, है ना? तो फिर अगर हम बाकियों की भी बात करें तो उनके केस में तो कुंडली मिली नहीं है, तो फिर लाइफ ऑब्वियस है कि हमें पता ही नहीं है कि कैसे वो इम्पैक्ट हो रहा है कैसे नहीं। और अगर इनकी बात करें जिनकी कुंडली बनी है और जिनका वो मिलान होता है, उनकी कुंडली का मिलान क्यों ज़रूरी हो जाता है? अगर फिर मिलान हुआ है तो फिर उनका डिवोर्स केसेस जो हैं वो इतने बढ़ क्यों जाते हैं? मैं थोड़ा-सा इसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए कुंडली मिलान ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आजकल का टाइम जो बदल गया है काफ़ी, क्योंकि पहले फीमेल्स अर्न नहीं करती थी, आजकल अर्न करती है, इंडिपेंडेंट है। मेल भी इंडिपेंडेंट है, फीमेल भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है? तो सपोज़ कोई प्रॉब्लम होती है, वो तो हर घर में ही होती है, तो फीमेल्स सोचती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, तो मैं किसी की क्यों सुनूँ? मैं किसी की बात क्यों सुनूँ? मैं उनकी बात क्यों सुनूँ? सोचती है मैं किसी के कंट्रोल में क्यों रहूँ? तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं आपस में, रिलेशन में। तो डिवोर्स का वजह कहीं ना कहीं ये बन जाती है कि हम लोग अलग हो जाएं, मैं किसी की सुन रही हूँ, मैं क्यों इनके अकॉर्डिंग चलूँ। पहले होता था कि वो फीमेल डिपेंडेंट रहती थी, घर को ही संभालती थी, अब वो घर को भी संभाल रही है, बाहर को भी अपनी जॉब भी देख रही है। तो इसमें ये मैं तो ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये रीज़न होता है कि कुंडली मिलाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि दोनों के आपस में मैच हो जाए, एनर्जी सोच हो जाए। सोच मैच हो जाए, चीज़ें मैच होंगी तभी चीज़ें साथ में चल पाएंगी, पैरेलली स्मूथली चल पाएगा रिलेशन। और कई बार कुंडली मिलाने के बाद भी लोगों के डिवोर्सेस होते तो उस केस में फिर हम क्या कह सकते वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे कुंडली मिलाई, किससे कुंडली मिलाई। आजकल लोग सिर्फ गुण पे ही लिमिटेड रह जाते हैं, लेकिन गुण मिलाना सफिशिएंट नहीं है, और भी चीज़ें देखी जाए। अच्छा, इसमें और कुछ भी होता है? गुण मिलाना नहीं होता है, गुण मिलाने से कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि जैसे मैंने कहानियां देखी हैं या मतलब कहानी मतलब फिल्मों में देखा है कि भाई लड़का और लड़की के इतने गुण मिल गए तो मेरी लाइफ ऐसी होगी काइंड ऑफ, है नहीं ना? नहीं, ऐसा नहीं होता है, गुण मिलाना सफिशिएंट नहीं है, और चीज़ें भी देखी जाती हैं जिससे काफ़ी हद तक बैलेंस करते हैं। कई कुंडलियों में ऐसा होता है कि दोष ही ऐसा होता है, या फिर उनके पूर्व जन्म के कर्मज ऐसे होते हैं कि जिससे उनके लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही आनी, चाहे आप जितनी मर्जी मैच मेकिंग। अब जिसका डिवोर्स होना है वो तो होना ही है, हम उसको रोक नहीं सकते, हम उसको बस बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कि आपकी ये प्रॉब्लम है, तो आप अलर्ट रहिए, उस पर आप काम कर लीजिए। अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो डिवोर्स हो ही जाता है। और क्या क्या दोष होते हैं? जैसे अभी आपने कहा ना कि कुंडली में और भी कई सारे दोष हो सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे दोष होते हैं जो लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं? दोष दोष का नाम तो हम खुद देते हैं ना, कई कॉम्बिनेशन कुंडली में ऐसे होते हैं जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। कोई कहीं आपका फेज ऐसा लाइफ में आ जाता है कि आपको बहुत राइज करा देता है, कई फेज ऐसे आते हैं आपको बिल्कुल डाउन कर देता है। ये डिपेंड करता है कि कुंडली में दशा कैसी है, फेज कैसा चल रहा है, उस पर डिपेंड करता है, और ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है कुंडली में। अगर आपकी कुंडली में अच्छे कॉम्बिनेशन से अच्छे ग्रह हैं, उनकी दशा ही नहीं आया आपकी लाइफ में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। और आपकी कुंडली में अगर बहुत बुरा टाइम, बहुत बुरे योग बने हो,
उनकी दशा नहीं है तो भी आपके साथ बुरा नहीं हो सकता, जब तक उनकी दशा वगैरह नहीं आएगी। दशा होगी, ट्रांजिट होता है, इसमें वो सब देखा जाता है। तो जैसे आपने ये दशा वाली बात कही, मतलब मेरे पास ना 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो मैं पूछना चाहती हूँ दशा और महादशा के बारे में, किसके बारे में समझाओ। लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हम लोग बात करें कुंडली के बारे में, है ना? कि वो कुंडली का मिलान ये सब कुछ होता है। तो लाइफ में अगर हम जैसे कोई पर्सन चाहता है उसकी लव मैरिज हो, या मतलब लाइफ में प्यार होना चाहिए, या मतलब ऐसी खराब नहीं चलनी चाहिए, बहुत कलेश। क्योंकि आजकल के टाइम पीरियड में आप देखो कि हर बार दिन में 10 से 15 खबरें ऐसी होती है जिसमें यही है, एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहे हैं लोगों के, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे, कोई कुछ प्लान कर रहा है। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, मतलब आई रियली वांट टू नो अबाउट इट कि ऐसी चीज़ें, मतलब क्या आजकल कुंडलियाँ या आजकल ग्रहों की दशा ज़्यादा खराब है पुराने टाइम के कंपैरेटिवली, या कुछ 2-3 या 10 साल पहले के कंपैरेटिवली? कि कोई ऐसा होता है कि ग्रह जो है वो जेनेरिक वे में सबकी कुंडली पे हावी हो जाएँ और ऐसे जो किस्से हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो जाएँ? 10 साल पहले इतनी कहानियाँ नहीं सुनी थी जितनी अब सुनने को आती है, और रोज़ आती हैं। तो क्या ऐसा कुछ होता है? आजकल टाइम बदलता जा रहा है, लोग मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, रिलेशंस को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। एक तो एक स्टेटस भी बहुत बड़ा फैक्टर है इन चीज़ों को ख़राब होने के लिए, पैसा भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और बाकी जो हमारा कल्चर जो वेस्टर्नाइज हो गया है, इस वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ी। तो ग्रहों का इसमें कोई लेना-देना नहीं होता कि जेनेरिक वे में? ग्रह तो अपना काम कर रहे हैं, ग्रह का इम्पैक्ट तो हो ही रहा है आपके ऊपर, डिपेंड कर रहा है कि आप उसको कैसे ले रही है। जैसे मैंने ना कुछ वैसे एपिसोड्स देखे थे और उसमें ये जानकारी बता रहे थे कि ये वाला साल है, ये मार्स का साल है। तो इस साल में एनर्जीज़ का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, बहुत इंक्रीज़्ड है। तो चीज़ें जो है वो बहुत ख़राब हो सकती हैं हर तरीके से, चाहे वो मौसम की बात करो, चाहे तुम वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स की बात करो। तो आई रियली वांट टू नो कि वो जैसे मार्स का साल है, दैट मीन्स कि एक ग्रह है जो इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से जो एक ग्रह है वो किसी एक पर्टिकुलर राशि के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, या एक पर्टिकुलर कुंडली के ऊपर, या वो हर किसी को अपने लपेटे में ले? ये जो आप बात कर रही है कंट्री लेवल पे बात हो रही है, ओके। ये पर्टिकुलर किसी पर्सन के ऊपर बात नहीं कह सकते आप। डिपेंड करे, अगर आप किसी पर्सन की बात करते हैं तो उसकी कुंडली में उस मंगल की स्थिति कैसी है, मंगल की प्लेसमेंट कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। अब किसी की कुंडली में मंगल के अंदर पावर ही नहीं है, मंगल के अंदर बल ही नहीं है, तो उसके अंदर वो कैसे वॉयलेंस करेगा। ठीक है। अब वर्ल्ड लेवल पे आजकल वॉर का समय चल रहा है, आप सुन ही रहे होंगे न्यूज़ में। तो अब किसी का मंगल ज़्यादा पावरफुल है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। दैट मीन्स ज्योग्राफिकली भी कुंडली अलग बनती है उस तरीके से? जी, कंट्री लेवल पे अलग बनती है, उसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। जो हम यूज़ करते हैं वो दूसरी कुंडली, पर्सनल कुंडली से होती थोड़ा सा इसके बारे में बताओगे, मुंडन एस्ट्रोलॉजी और नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क होता है? किस तरीके से वो होती है? ज़्यादा डिटेल में नहीं, जितना आपको ठीक लगे। है। उनका उसका तरीका थोड़ा अलग है देखने का, उसको प्रेडिक्ट करने का तरीका अलग है, और जो हम अपनी पर्सनल कुंडली से देखते हैं उसका तरीका अलग है करने का। वो वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है, कंट्री लेवल पे बात हो रही है। अब जैसे कि मार्स की बात कर रहे हैं आप, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी कुंडली में मार्स कैसा है, क्योंकि उन्होंने ही सारे ऑर्डर्स करने हैं, सारा वो परमिट करना है कि कंट्री में कब कौन से एक्शन कब लिया जाना है, लेना चाहिए, तो उनके हाथ पे उस पर डिपेंड करेगा। ओके। जैसे ना आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि आप सॉरी, साढ़े सती और सर्पियों के बारे में बात करूंगी, लेकिन मुझे याद है हमारा वो क्वेश्चन रह गया जिसमें हमने बात करे थे दशा और महादशा के बारे में। तो आप मुझे एक बार समझाइए, जब हम लोग कभी कभी हम चैट जीपीटी पे भी डालते हैं, या फिर कोई नॉर्मल भी बताए, तो वो ऐसे बोल देते हैं आपकी ये दशा और इसके बाद ये वाली महादशा है। क्या होती है दशा और क्या होती है महादशा? बात एक ही है, महादशा ही होती अच्छा, एक ही चीज है। होती दशा है। और महादशा, कई कई लोग दशा कहते हैं, कई लोग महादशा कहते हम्म। हैं, बात एक ही है। ओके। क्या टाइम पीरियड होता है, क्या सिचुएशन? हर ग्रह का अपना एक टाइम पीरियड फिक्स है, जैसे सन का है, मून का 10 ईयर्स है, मार्स का 7 ईयर्स है, राहु का अपना है, जुपिटर का अपना है, सैटर्न का, सबका फिक्स्ड है, वीनस का अपना है, राहु को भी अपना है, केतु का सबका अपना है, अपना अपना टाइम फिक्स्ड है। इस टाइम पीरियड तक आपकी दशा चलेगी। कभी ऐसे हो सकता है कि एक टाइम पे किसी की 2 तरीके की महादशा चल रही हो, या 2 प्लैनेट्स एकदम से एग्रेसिव हो जाए किसी एक ही कुंडली में? पॉसिबल है। ओके। एक दशा, हाँ। मेन फेज, एक सब फेज। ओके। मेन फेज भी अब आपका एग्रेसिव प्लेनेट आ गया, और सब फेज भी एग्रेसिव प्लेनेट आ गया, तो वैस तरह जैसे कुंडली प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट। तो तबाही है ना? मतलब इसको हम ये कह सकते हैं कि दशा और महादशा की बजाय इसे दशा और सब दशा। हाँ, मेन फेज, सब फेज, हाँ, मेन फेज। ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे आपको ठीक है समझने। हम बात कर रहे थे कुछ दोषों के बारे में। कुछ ना
टर्म्स हैं सुनने में बड़ी डरावनी लगती हैं, है ना? जैसे कोई आपकी कुंडली चेक करे या कोई वैसे चेक करे तो वो बोल दे भी आपका तो सर्प दोष है। लगता है भी पता नहीं कौन सा पाप कर लिया कि ये सर्प दोष आ गया। सर्प दोष। सर्प दोष, जी। है ना? तो मैं ना जानना चाहती हूँ कि ये सर्प दोष, एक तो सर्प दोष के बारे में और एक मैंने बड़ा सुना है गंडमूल के बारे में। मैंने ऐसे सुना है कि कुछ बच्चों का जो गंडमूल में पैदा होते हैं, उनका नेचर, उनकी फितरत, प्रकृति जो होती है हर चीज़, वो बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली बड़ी डिफरेंट होती है। तो मुझे इन दोनों के बारे में थोड़ा एलैबोरेट में विद एग्जांपल्स बताइए ताकि हमारे लिसनर्स जो हैं वो आराम से समझ सकें। देखिए, जो सर्प दोष की बात करें, कई लोग काल सर्प दोष कहते हैं। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, शास्त्रों में कोई इसका वर्णन नहीं मिलता है, कुछ नहीं होता है। ये मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो नए लोग एस्ट्रोलॉजर्स आजकल आ रहे हैं, वो इस दोष के माध्यम से अपना अर्निंग का सोर्स बनाया हुआ है। सीरियसली? कुछ नहीं है ये दोष। अगर अगर ये दोष इतना इफेक्टिव होता तो अब सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प दोष है, वो इतना राइज करके, लता मंगेशकर की कुंडली में ये वाला दोष है काल सर्प दोष, वो भी राइज करेंगे। अगर ये दोष है तो इतना राइज कैसे कर सकते हैं? और गंडमूल नक्षत्र पर्टिकुलर वो 6 नक्षत्र होते हैं ये वाले जो इसको गवर्न करते हैं, बुध और केतु। ठीक है, इन नक्षत्रों में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, वो ऐसा नहीं है कि बहुत वैसे होंगे, प्रॉब्लमेटिक होंगे। डिपेंड करेगा कि जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि वो बच्चा अपने पिता के लिए भारी है, माता पर भारी है, चाचा पे भारी है, मामा पे भारी है। डिपेंड करेगा उस नक्षत्र पे, किस नक्षत्र में पर्टिकुलर किस चरण पे बच्चा का जन्म हुआ। तो ये बुरा नहीं होता है, गंडमूल भी बुरा नहीं होता? नहीं, कुछ बुरा कुछ भी नहीं होता है। ओके। और गंडमूल की कुछ वो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसपे बच्चे का बर्थ हो जाता है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक कहते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें इन चीज़ों का परहेज करना है। कुछ बस उस पर ध्यान देना होता है और कुछ नहीं करना होता। मतलब क्योंकि ये तो किसी के हाथ में भी नहीं है कब जन्म होना है, कब, ये आपके हाथ में नहीं है, तो ये तो बर्थ और डेथ हमारे हाथ में है ही नहीं। में है नहीं है। तो जो जिस टाइम पे हुआ और जो चीजें बनी वो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जी, क्योंकि मैंने इसे सुना था कि उन बच्चों की कुछ खास तरीके से पूजा की जाती है, गंडमूल वाले बच्चों की, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव होते हैं कंपैरेटिव टू दी अदर। नहीं, अग्रेसिव डिपेंड करता है किस नक्षत्र में किस पदा में बच्चे का जन्म, उस पर डिपेंड करता है। अग्रेसिव तो नहीं होते। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि बहुत लंबे टाइम तक लोग इसी तरीके से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं कि अगर ये है तो बहुत बड़ी बात है, इस ज्योतिष का मिसयूज बहुत हो रहा बहुत ज्यादा। है, बहुत मिसयूज हो रहा है। इस वजह से लोगों को डराया जा रहा है इन नामों से। इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे अभी आपने बोला ना वो 7.5 भी और ये जो 7.5 साल होते हैं शनि देव के भी और जो बाकी की चीजें भी हैं, ये वो चीजें हैं, वैसी चीजें हैं जिसको लेके ना हर कोई बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि पता नहीं क्या ही होने वाला है ना? लेकिन क्योंकि ये डराया जाता है, अगर नॉर्मल किसी के पास जा रहे हो तब भी, और कभी तुम कुछ रील्स या कोई बाकी चीजें भी देखते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम में बाकी कंटेंट जो क्रिएट होता है ना, उसमें नॉलेज कई बार कम होती है, ज्यादा थोड़ी डराने वाली चीजें होती हैं। देखिए ना, इंस्टाग्राम की रील 60 सेकंड की होती है, हाँ, तो उसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सकती मिल ही नहीं सकती। है, पॉसिबल ही नहीं है। और 7:30 ही आना तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट आप अलर्ट हो जाते हो, आपके कर्म अच्छे हो जाए, आप कर्म अच्छे करना शुरू कर देते हो। उस पर्टिकुलर टाइम पे तो अच्छे कर्म करते ही हो ना। आप जा रहे हो मंदिरों में, पूजा पाठ कर रहे हो, घर में अपने पेरेंट्स को सता रहे हो, किसी गरीब को सता रहे हो, क्या फ़ायदा ऐसे पूजा पाठ करने का? कोई फ़ायदा नहीं है। 7:30 में आपको बैड रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। आप अपने कर्म अच्छे रखो, आपको 7:30 कभी तंग नहीं कर सकती। चलो एक बात बताओ मुझे, पुराने कर्म क्या हैं हमारे पिछले जन्मों के, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अगर हम इस जन्म के कर्मों की बात करें या अभी जब से हमें को ये कॉन्शियसनेस आ गई कि ये अच्छे कर्म करने हैं ताकि हमारा जो आने वाला टाइम है या फिर जो ये वाला टाइम है वो अच्छा सा चले, तो क्या होते हैं वो अच्छे कर्म? क्या क्या कर सकता है बंदा कि उसके कर्म अच्छे हो जाएं? क्या नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खराब कर्म है? देखिए, हमें ह्यूमन बर्थ क्यों मिला है? हम इस बॉडी, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमें जो ह्यूमन बर्थ मिला है, हमें अच्छे कर्म करने हैं, भगवान से कनेक्ट रहना है, ताकि हमारा रीबर्थ दोबारा ना हो। ठीक है, हम जाने अनजाने कर्म करते हैं, हम किसी के बारे में बुरा सोच भी लेते हैं तो भी ये कर्म बन जाता है हमारा। सोचना भी कर्म बन जाता है। सोचना भी कर्म, आपने एक थॉट भी ले लिया किसी के लिए तो भी आपका कर्म बन रहा है। तो आपको अच्छे काम करने, जैसे हमें सिखाया जाता है, अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलें, किसी को सताए ना, किसी का नुकसान ना पहुँचाएं, किसी का हक ना मारे, यही आपके अच्छे कर्म है। किसी के साथ अनफेयर ना करें आप, ये आपके अच्छे कर्म है। एक और चीज़ बताओ मुझे, जैसे कहते हैं कि जो आपका सन है या फिर तुम्हारा जो मून रहता है तुम्हारी कुंडली में, और वो एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में अगर बात करें जी, तो वो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ रिलेटेड होता है, जी, सन फादर के साथ, और जो मून है वो मदर के साथ। जी। तो अगर आपको मून अच्छा करना है तो ये करो, सन अच्छा करना है तो ये करो, और कई बार तो मतलब ऐसी होती है कि आप पूजा करवाओ, ये पूजा करवाओ,
क्या सच में पूजा करवाने से जब तक उस तरीके की पूजा स्पेसिफिक बहुत जो महंगी वाली पूजा होती है वो कराने से जो प्रॉब्लम्स है लाइफ में वो ठीक हो जाती है? नहीं, पूजा करानी चाहिए। पूजा सन अपने फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, उनको पूजिए, आपका सन ठीक हो जाएगा। आपको कोई स्टोन पहनने की, कोई पूजा कराने की जरूरत नहीं है, ओके। किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। मून आपके मदर को रिप्रेजेंट करता है, अपनी मदर की सेवा कीजिए। जो मदरली फिगर जो आपके आसपास लेडी है उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, आपका मून ठीक है। और कौन से ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारे प्लैनेट्स का डायरेक्ट कनेक्शन होता है? मंगल है, मंगल हमारे भाई बहन भाई के साथ कनेक्ट होता है, ब्रदर के साथ, तो उनसे रिलेशन अच्छा रखिए। सपोज किसी भाई में आपस में रिलेशन अच्छा नहीं है, डेट मीन्स मून इफेक्टेड है आपके चार्ट में। आप खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आपका मदर से आपका अच्छा बॉन्ड नहीं है या अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो डेट मीन्स आपका मून कहीं ना कहीं इफेक्टेड है कोई कुंडली में। और मरकरी है हमारी डॉटर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, बुआ को भी रिप्रेजेंट करता है, और राहु केतु हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, मतलब कर करा के अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स और आप अपनी फैमिली के साथ सही रहिए, आपको सब कुछ सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। मतलब अगर आपको कुंडली के बारे में कुछ नहीं पता, अगर इसमें आप नहीं हैं और आप अपनी फैमिली के साथ, अपने आस पड़ोस में लोगों के साथ अच्छे हैं, जानवरों के साथ अपना अच्छे हैं, बिहेवियर अच्छे तो रखिए हर चीज अच्छी है आपके लिए। जी। आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहिए, नेचर को नुकसान मत पहुंचाइए, एनिमल्स को नुकसान मत पहुंचाइए, आपको कुछ नहीं होगा। ओ माय गॉड। मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोगों के दिमाग में ना, या सुन सुन के, या ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि दिमाग में बहुत घर कर जाती है कि आपको ये हो जाएगा, वैसा कर लोगे, वैसा हो जाएगा, मतलब बहुत डर है ना। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट कि आपके पेरेंट्स या आपके जो आस पास के जो लोग हैं वही तुम्हारे प्लैनेट्स का काम करते हैं। उनके साथ ठीक हो, उनके साथ तुम ठीक कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी कुंडली और सब कुछ चीजें जो है वो अच्छे से चल रही हैं। वेरी नाइस सर। एक और बात बताओ मुझे कि ऐसे होता है कि तुम्हारी जो कुंडली है वो तुम्हारी सिकनेस को या तुम्हारी डेथ को भी प्रिडिक्ट करे? पॉसिबिलिटी है सेम? पॉसिबिलिटीज है, लेकिन डेथ को आप एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप आइडिया लग सकता है आपको कि आपका किस तरह से डेथ हो सकती है, क्या रीज़न हो सकता है डेथ का, ये आप पता लगा सकते हो। एग्जैक्टली पता नहीं, इतना नहीं, कंफर्मेशन से नहीं कह सकते इसको। कोई हाई लेवल का ज्योतिष जिसको नॉलेज है वो ही कर सकता है, या जिसको भी एक बेसिक नॉलेज है वो भी बता सकता है नहीं इसके नहीं, बारे इसमें ज्योतिष में देखो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जिन्होंने ऑनेस्टली इस पे काम किया हो, इसकी स्टडी की हो प्रॉपरली, ऑनेस्टली अपने ज्योतिष को किया हो, तो वो हो सकता है, वो पॉसिबल है कि आपको उस पॉइंट तक ले जाएं। एग्जैक्टली उस पॉइंट तक नहीं, 80% तक आपको ले जाएंगे, 100% तो वो भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि पॉसिबल तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। कैसे फाइंड आउट करे कि ये वाला ज्योतिष फेक है और ये वाला ज्योतिष रियल है? क्योंकि सॉरी टू से बाहर हर तरीके की जॉब्स, या मैं बोलूँगी हर तरीके का जो भी काम है उसमें लोग भरे पड़े हैं, है ना? और आज इंस्टाग्राम पे बाकी चीज़ों में प्रमोशंस एंड बाकी की चीज़ें बहुत ऐसा है जिसमें हमें पता नहीं है। और जिस बंदे को इन सारी चीज़ों के बारे में, चार्ट्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, वो किसी के पास भी जाएगा, हो सकता है उसको डरा के, वर्गला के, काइंड ऑफ, है ना, स्टोन्स पहना दे, बाकी की चीज़ें कर दे। तो कैसे हम ये श्योर करें कि ये जो बंदा है ये फेक है और ये वाला बंदा जो है वो रियल है? कर ही नहीं सकता है काम ये तो इंसान बहुत तो, टफ है आजकल, है ना? क्योंकि आजकल हर घर में, हर गली गली में आपको ज्योतिष मिलेगा। किसी ने 2 महीने का कोर्स किया, 3 महीने का कोर्स किया, वो ज्योतिषी बन गया, उसने अपने नाम के आगे आचार्य लिख ली। लोगों को आचार्य का मीनिंग ही नहीं पता है। आचार्य तो एक मास्टर्स डिग्री होती है, और लोग 3 महीने के कोर्स में आचार्य बन जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत मुश्किल है, टफ है आजकल, क्योंकि आपको बहुत सारी ऑप्शन है, और उनकी फीस भी है। कोई अब 100 रुपीज़ में ले रहा है, कोई 500 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, कोई 11,000 तक ले रहा है। बिल्कुल ऐसे कैसे से सब अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग जाते हैं। और बेसिकली लोगों को आजकल उपाय चाहिए, कोई रेमेडी देंगे तो दैट मीन्स वो ज्योतिष अच्छा है। अच्छा। लोगों का ये दिमाग में मिथ है, हाँ। इसलिए लोग इस तरह भटक रहे हैं, और लोगों का इस पर से विश्वास उठता जा रहा है ज्योतिष। और रेमेडीज करने से वो चीजें को फर्क पड़ता है? रेमेडीज मैम, रेमेडीज क्या है कि बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हम भगवान से कनेक्ट करते हैं। आप भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका सोल प्योर होना शुरू हो जाएगा। तो प्योर हो जाएंगे तो आपके अंदर खुद ह्यूमैनिटी आ जाएगी, आप खुद नॉर्मल हो जाएंगे, आपको टफ टाइम फील ही नहीं होगा। आप भगवान से कनेक्ट तो हुई एक बारी। आप सपोज जैसे आप मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं, आपको रिलीफ मिलता है, उधर इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, कितने दुखी बैठे हो, उस पर्टिकुलर ओरा में जाती है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो कहाँ जरूरत है, जाओ ना उधर, रिलीफ तो, असली रिलीफ तो वही है। बिल्कुल। और कहाँ जा रहे हो, कहाँ भटक रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो कई बहाने चीज़ों को या ज़मीन में दबाने, बिल्कुल। कहाँ रिलीफ मिलेगा? ये तो हमारा साइकोलॉजिकल है कि हमने ये कर लिया तो डेट हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। दैट मीन्स अगर आपको ऐसी खतरनाक रेमेडीज मिल रही है तो वही बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि दिस इज अ फेक।
हाँ, फेक हो सकता है, हम्म, लोग इस नाम से इसका मिसयूज कर रहे हैं, ऐसा होता है, लेकिन इसका मिसयूज किया जा रहा है इन रेमेडीज का। मतलब किसी भी चीज में जाने से बेहतर ये है कि हम अपने आप को ठीक करें, मतलब वही बात जैसे हम अपने आप को ठीक करें, अपने फैमिली की रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, भगवान पे विश्वास रखें और अपने कर्म अच्छे रखें। वही बात ना कि स्पिरिचुअल होना, जैसे हम लोग जो Spiritual। पॉडकास्ट करते हैं ना, हमारे पॉडकास्ट का मैक्सिमम टाइम पे थीम यही होता है स्पिरिचुअलिटी। और आज मुझे लगा था कि हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे, हम जानेंगे कि कैसे होती है एस्ट्रोलॉजी, लेकिन आज भी हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू फिर दोबारा पहुंच गए स्पिरिचुअलिटी में कि करना हमें वही है, हमें अपनी मैम अल्टीमेटली सब कुछ कनेक्ट भगवान से ही है, भगवान के साथ ज्योतिष भी भगवान से ही निकला है, हमारे वैदिक शास्त्रों से ही निकला है वो बिल्कुल ज्योतिष। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप चाहो तो आंसर करना चाहो तो आप कर सकते हो, मतलब कोई मैं वो नहीं करना चाहती हूँ। एक लाल किताब के बारे में बड़ा सुना है कि कुछ होती है लाल किताब, कुछ बड़े टूने टोटके होते हैं, क्या कुछ बता सकते हो आप इसके बारे में? लाल किताब के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, जी। ठीक है। लाल किताब भी है, मैं कहूँगा रेलेवेंट है, लेकिन उसको करने वाले सही हैं कि नहीं है उस पर डिपेंड करे। वो सेम चीज सेम ऐसा ज्योतिष भी है। ज्योतिष में जैसे है। अगर बिल्कुल प्रोफेशनली लोग प्रोफेशनल हैं, उन्होंने अच्छी स्टडीज की हुई हैं, तो ये पॉसिबल है उसमें भी कि चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन आजकल लोग इसका मिसयूज कर करके हर चीज़ को ख़राब कर चुके हैं। चाहे लाल किताब हो, चाहे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे कुछ भी हो, दूसरी केपी एस्ट्रोलॉजी भी चलती है, सब इफेक्टिव है, बस को करने वाला सी होना चाहिए। कोई चीज़ गलत नहीं है, बस करने वाला गलत होता है, उसको उसको यूज़ करने वाला गलत है। प्रेडिक्ट किया जी। जाएगा। अच्छा हम दोषों की बात कर रहे थे, दोषों में आई थिंक मैं एक दोष के बारे में बात करना भूल ही गई, जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पितृ दोष भी कुछ होता है ना? जी। कुछ तुम्हारा शायद एंसेस्ट्रल कर्स बोल रहे, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। जी हाँ, इससे हम कनेक्ट करते हैं, हमारे पूर्वजों से कनेक्ट करते हैं, उनके बैड कर्मास जिसके हमें हमें भोगना पड़ता है। पितृदोष को इसलिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से देखते हैं कि हमारे कुंडली में जब सूर्य खराब है तो हमें पितृदोष लग रहा है। मातृ ऋण भी होता है, जब चंद्रमा हमारा इफेक्टेड होता है तब हमें मातृ ऋण होता है। तो हम उस ऋण को क्लियर करने के लिए, जैसे हम श्राद्ध करते हैं, माता पिता का श्राद्ध करते हैं या हमारे अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, उससे इससे काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। इसका दोष का निवारण यही होता है और कुछ नहीं होता है। मतलब निवारण वही है कि तुम्हें अल्टीमेटली आपको पूजा पाठ करना है, पूजा पाठ करनी हर है चीज़ का और यही है। सेवा करनी है। जी। सेवा करनी है अपने माता पिता की, अपने बड़ों की, है ना? जी। नेचर की, अपने आसपास एजेड की। लोगों के आप रिस्पेक्ट करें, उनके डिसरिस्पेक्ट ना करें, उनको इम्पोर्टेंस दें, जो कि हम नहीं देते हैं आजकल, तब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है। पहले आप कह रहे हैं ना कुंडली मिलान की, पहले बड़े बड़ों की बात मानी जाती थी, आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते, जॉइंट फैमिली में कोई नहीं रहता, इस वजह से प्रॉब्लम है। पर एक एक बात बताओ, समटाइम्स क्या होता है जैसे मतलब मैं किसी को वो कुछ ऐसे बोलना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ना ईगो होती है, जैसे उम्र बढ़ने से जरूरी नहीं है कि आपकी ईगो भी कम हो। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की ईगो बहुत बड़ी होती है, आप उनको हर्ट नहीं कर रहे हो लेकिन वो फिर भी हर्ट हो रहे हैं, तो फिर क्या वो आपके कर्म बन रहे हैं? बिल्कुल तो आपने कुछ भी नहीं किया बिल्कुल, ऐसा। देखिए आपका आपके साथ बुरा हो रहा है ना, तो कोई रीज़न बनेगा आपका बुरा होने का। अगर आपको तंग होना है तो वो रीज़न बनेगा कोई ना कोई। मैं ना एक किसी का ही क्वेश्चन है, मैंने काइंड ऑफ देखा है अपने आसपास में, और ये मैंने फेस किया है कि जैसे कुछ लोगों के केस में क्या होता है, शादी एक ही बार में हो जाती है, मतलब एक लड़की देखी एक लड़का देखा और शादी हो गई, और साथ में अगर बच्चा है तो बच्चा भी साथ में बड़ी जल्दी बड़े आराम से हो गया, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। और एक कोई ऐसा हो सकता है जिसकी शादी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आई पहले तो, उसके बाद शादी में तो कॉम्प्लिकेशंस आई ही आई, बाद में बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो उस केस में ये क्या चीज़ें होती हैं? क्यों आती है कॉम्प्लिकेशंस? कैसे उन चीज़ों को ठीक कर सकता है कोई भी इंसान अगर वो करना चाहे? कोई ख़ास पूजा वगैरह रहेगी या फिर जैसे आपने बोला वो नेचुरल रेमेडीज़ वही चलेंगी हमारी? नेचुरल देखिए, जब तक वो टाइम हमारे कुंडली में योग बनते हैं, हुँ। शादी का भी योग बनता है, संतान का भी योग बनता है। जब तक संतान का योग नहीं बनेगा तब तक आप संतान के लिए सोच सकते भी नहीं। आप कोशिश कर लें जितनी मर्जी, लोग आईवीएफ आजकल ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल। आईवीएफ भी तब वर्कआउट होता है जब दशा होती है आप। अच्छा। जब तक आपकी दशा अच्छी नहीं होगी, संतान वाली दशा नहीं आएगी, तो संतान जिसमें दशा जिस दशा में संतान होती है, अगर वो दशा नहीं तब भी आपका आईवीएफ भी वर्कआउट नहीं होगा। वो हो सकता है हमारी बॉडीज में कमी, हमारा लाइफस्टाइल इस तरह का हो चुका है, हमारा खान पान इस तरह का हो चुका है, जिस वजह से हमारे अंदर कमी आई हुई है। हमारे लाइफ में स्ट्रेस इतना है तो हम हेल्दी नहीं है, तो इसलिए बच्चे होने में दिक्कतें आती हैं। आपने काफ़ी उन क्वेश्चंस का आंसर दिया जो हम लोग ना कभी
कभी कभी हम सोचते हैं कि शायद इसी कारण चीज़ें खराब है लाइफ में। जाते जाते मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ अबाउट जेमस्टोन। जैसे लोग कहते हैं या पंडित जी कहते हैं कि आप ये वाला नग पहन लो, ये वाला आप ये पहन लो, नीलम या कुछ भी पहन लो, तो उससे आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। ये नग बहुत महंगे होते हैं, मतलब लाखों में आते हैं ये नग, है ना? कैसे ये जेमस्टोन्स आपका वो इम्पैक्ट करते हैं? कैसे वो चीज़ें ठीक होती हैं? क्या ये सिर्फ एक पैसे ऐंठने का तरीका है या लिटरली इसमें कुछ नहीं, इसमें इसका रेलेवेंस है, इसमें एनर्जीज़ होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है, हर किसी के लिए स्टोन नहीं होता है। देखिए, अब एक बात बताइए, ज्वेलर के पास सारे स्टोन होते हैं, उसके लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो तो हर स्टोन पहन सकता है। लाइफ में प्रॉब्लम उसकी भी होती है, संतान उसकी भी नहीं होती है, मैरिड लाइफ उसकी भी डिस्टर्ब होती है। स्टोन पहनने से चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। स्टोन आपको कितना ठीक कर लेगा? हमें सिर्फ घूम फिर के बात आती है कर्मा पे। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो ही होगा। स्टोन भी तब आपके पास काम करेगा, अगर आप स्टोन पहन रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं तो भी उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। कभी ऐसे होता है कि स्टोन पहना और वो स्टोन ने आपकी बैड कर्मा उसको और एग्रेसिवली कर दिया, या मतलब आप वो डिपेंड करेगा ना, अपने आपको किसने वो बेयर कराया, किसने धारण कराया, उस पर डिपेंड करेगा। आपने क्या सही रत्न धारण किया है? अब आपको सिर दर्द है और आप पेट दर्द की दवाई खा लेंगे गोली, तो क्या होगा? ये बताने वाले ही जानेगा ना। सही डॉक्टर होगा तो सभी सही ट्रीटमेंट तभी होगा। और जैनिक बंदे के लिए ये ना कि दर्द है, चाहे सर दर्द है, चाहे पेट दर्द है, दर्द तो दर्द है, कोई भी कॉमन सी माइग्रेन अलग चीज़ होती है, कॉमन सिर दर्द अलग होता है, तो दोनों की मेडिसिन अलग है। राइट, क्रॉनिकल डिजीज काइंड ऑफ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी हमें। और मुझे लगता है कि जो कुछ मिथ्स लोगों के दिमाग में रहती है कुछ ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, या फिर कुछ दशा और महादशा के बारे में जो हमने अभी डिस्कस किया, वो काफ़ी क्लैरिटी आई होगी। और आपके पास बहुत ज्ञान है, और मैं रियली चाहती हूँ कि हम लोग और भी कुछ एपिसोड्स करें जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें, सो दैट हर किसी को एटलीस्ट उसकी बेसिक नॉलेज तो हो कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, सो दैट बाकी के जो लोग जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज है वो हमें बेवकूफ़ ना बना पाए। वो ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला और हम लोग ये पॉडकास्ट कर पाए।